Hello students, welcome back. I am Rinkesh sir, and today we'll continue with chapter number 4, that is moving charges and magnetism. Today's topic is Biot-Savart law. It is an equation which gives magnetic field produced due to a current carrying segment. ओके मतलब बायो सवार्ट लॉ से हम करंट कैरिंग सेगमेंट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो फाइंड कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ लेट्स कंसीडर वायर. हम ये वायर ले लेते हैं. लेट द करंट कैरिंग इन वायर बी आई. ओके, हमने ले लिया इस वायर में करंट कैरिंग इज आई. ओके, तो वायर में करंट फ्लो होगा तो उसकी आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. राइट, तो हम ले लेते हैं एक पॉइंट पी. पॉइंट पी इस जगह पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो हम फाइंड करेंगे. राइट, लेट्स सिलेक्ट अ पॉइंट पी एंड फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो हम बायो सवार्ट लॉ से पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो फाइंड कर सकेंगे. ओके, नाउ लेट्स सिलेक्ट अ करंट एलिमेंट IDL. So for that we need to consider an infinitesimal small element DL of the conductor and current passing through it. मतलब हम यहाँ का एक बहुत स्मॉल एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे DL. ओके, इतने एलिमेंट मैंने बहुत स्मॉल एलिमेंट सिलेक्ट किया है DL. और हम इसका डायरेक्शन ले लेंगे, तो करंट का डायरेक्शन ले लेंगे. यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो. ये हो गया इसका डायरेक्शन. ओके, तो इस एलिमेंट को हम बोलेंगे IDL. ओके, वी हैव सिलेक्टेड a very small element IDL. Now, according to Biot-Savart's law, according to Biot-Savart's law, the magnetic field dB, let's take the magnetic field here due to very small amount of current element IDLB dB at this point, that is given by dB is equal to mu 0 I dl cross r upon 4 pi into r cube. Yeah, or I can write down mu 0 by 4 pi IDL cross r upon r cube, where mu 0 is permeability of free space. ओके, म्यू जीरो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. और म्यू जीरो की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. राइट, ये हो गई म्यू जीरो की वैल्यू. सो रिमेंबर द वैल्यू ऑफ म्यू जीरो इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ओके, और ये हम ले लेंगे वेक्टर फॉर्म में. अगर उसको मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू जीरो आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब. तो ऊपर भी आर नीचे आर क्यूब, तो हमारी फॉर्मूला आ जाएंगी म्यू जीरो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. नीचे आर क्यूब ऊपर आर, तो एक आर
कैंसिल हो जाएगा, where theta is the angle between dl and the position vector of point P, theta. क्लियर? ये हो गया बायो सवार्ट लॉ, राइट। कोई भी वायर में करंट फ्लो करता है और उसमें से हमको कहीं भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उसकी फॉर्मूला आएंगी डी बी इक्वल टू म्यू जीरो बाई फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, वेर आई डी एल इज द करंट एलिमेंट and r is the position vector at the point where we need to find out the magnetic field. From this formula, I can say that the magnitude of magnetic field is directly proportional to the current I, the length element dl, and inversely proportional to the square of distance between the wire and the point. Okay, square of the, or you can say square of the distance. Clear? This was about Biot-Savart law. So just go through this. Now about the direction of magnetic field. Here we will apply right hand thumb rule. See, in this case we have taken a wire, straight wire. Okay, so let the thumb be in the direction of the current, then the direction in which you roll your finger will be the direction of magnetic field. So in this case you can see that the fingers are rolled in this way. So this is the direction of magnetic field. Here you can see, here the direction of magnetic is inside and here it is outside. Clear? So if this is a wire and current flowing in this direction, then on this direction the magnetic field will be going inside, and in this it will be coming outside of the plane. So that is the case. We have taken previous example in such a way that this was the current flowing in the wire and we need to find out at this place point P. Then as the current is in this way, using right hand thumb rule, the direction of magnetic field was inside. So I would write down at point P cross. Okay, so this was about the direction of magnetic field. Just go through this point. Now let's move to the next point. Let's see the similarities between Biot-Savart law and Coulomb's law. First, both are long range force. बायोसावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है. क्लियर? सेकंड, बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ. ओके, हमने देखा दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. दैट मीन्स बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ. अगेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू द बोथ फील्ड. मतलब एक से ज्यादा करंट एलिमेंट हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो obey the principle of superposition. Means the principle of superposition applies to both field, magnetic field and electric fields. Now the next is very important. The electrostatic field is produced by scalar source, whereas magnetic field is produced by vector source, right? Electrostatic field is produced by, let me write down, produced by
scalar source. Okay, electric field that is produced by electric charge. So I will take this as scalar source. Which is the source of electric field? That is electric charge. Okay, whereas magnetic field, it is produced by vector source. Okay, and what is the source of magnetic field in this case? I will say the current element. Idea, we know that the magnetic field is produced due to moving charges or electric current, whereas electric field is produced by the electric charge. So the source of electric field is scalar, whereas the source of magnetic field is vector. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स स्केलर, या और इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड होती है। आइडियल एलिमेंट आई विल राइट डाउन इन दिस वे, ये एक है वेक्टर सोर्स। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? along the displacement vector joining the source and the field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं ये यहाँ पे कोई प्लस चार्ज ले लूं, तो अगर मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगी। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? द लाइन ज्वाइनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द सोर्स, मतलब Q और इसकी पोजीशन वेक्टर, राइट। जबकि मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? हमने अभी देखा कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो और इस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है पॉइंट P, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो इस पॉइंट पे कहां पे होगी? अंदर की साइड। ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये रहा अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गई परपेंडिकुलर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर and displacement vector joining the source and field point। जबकि मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the displacement vector R and current एलिमेंट IDL। ओके, इस केस में हमने ये लिया था करंट, देखो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ये भी परपेंडिकुलर हुआ। ओके, और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बायो सवार्ट लॉ में एंगल थीटा आया था, राइट। बायो सवार्ट लॉ की फॉर्मूला हम देखेंगे तो वो थी μ0 बाय 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मतलब थीटा आता है, मीन्स इट इज एंगल डिपेंडेंट, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में एंगल डिपेंडेंट नहीं है, राइट। मीन्स देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस in Biot-Savart law। Okay, but not in electrostatic case। क्लियर? तो उसका मतलब देखो बायो-सावर्ट लॉ में एंगल आता है, तो जब थीटा जीरो होगा तो उसका मतलब साइन थीटा जीरो, राइट। तो उसका मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे आ गई जीरो। तो मतलब अगर हम जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी जीरो। मींस इफ द करंट फ्लोइंग हियर इज इन दिस डायरेक्शन, राइट, तो इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी जीरो, क्योंकि आइडियल और पोजीशन वेक्टर दोनों के बीच एंगल थीटा हो गया zero। Means the magnetic field at any point in the direction of dl is zero। I can write down magnetic field at
any point in the direction of IDL is equal to 0. Okay, तो ये हो गई बायो-सवार्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ में similarities. Both are long range force, both are inverse square law, right? And in both the cases, the principle of superposition applies. So these are the similarities. और ये हो गए differences. राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका सोर्स स्केलर है इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड उसका सोर्स वेक्टर है आइडियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड फील्ड पॉइंट, जबकि मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट एलिमेंट में। और बायो-सवार्ट लॉ में एंगल डिपेंडेंस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में एंगल डिपेंडेंस नहीं होता है। मतलब बायो-सवार्ट लॉ हम देखें तो अगर एंगल जीरो हुआ तो साइन थीटा जीरो, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो जीरो आएंगे। क्लियर? सो नोट डाउन दिस सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बायो-सवार्ट लॉज एंड कूलम्ब्स लॉ। Okay, students. So that was about Biot-Savart law and the similar angle between, Biot-Savart law, the direction of magnetic field according to Biot-Savart law that we are used using right in thumb rule, the similarities between Biot-Savart laws and Coulomb's law. Okay, so that's it for today. In our next video lecture, we will see the magnetic field on the axis of current carrying loop. Okay, thank you.